Om Shanti. Very special greetings for the festival of Mahashivratri. It's interesting that out of all the different names, firstly we talk about Ratri when we say Shivratri, but we also talk about Mahashivratri. And this is because out of all the festivals, Shivratri truly is the highest one. This is because our understanding is that Shiva, the Supreme, the Benefactor, actually incarnates into this human world and takes on an instrument of a person who already has an old body, who's here in the physical dimension, and coming in the darkness of the world of Kali Yuga. In fact, at the end of Kali Yuga, the time of the darkest night, that is a time that God actually comes onto the earth to show us the path towards light and liberation and a world of love and truth. And so we are celebrating a very, very special event. But the beautiful thing is that this is not just a celebration of something that happened 5,000 years ago or maybe 10,000 years ago and is lost in the midst of time. It's actually something that we're participating in right now. Why I say this is because the Gita describes the time of God's descent as a time of extreme unrighteousness, at a time when in the name of religion and dharma, there is unrighteousness happening. Have a look at the newspapers. Have a look at the world around you. Do you recognize that it is that same moment once again? And this is then the moment that, according to the promise of God in the Gita, God actually comes to show us the way out of the darkness to the light. The memorial that we've been experiencing for Shivratri is the time when it's the darkest hour. There's no moonlight at all, Amavas, a time when there's total darkness. And then, of course, through God's incarnation, the light gradually comes. And then we celebrate the festival of Holi, a time of joy, of celebration, of being able to vanquish all that is negative and evil. And so God's incarnation truly transforms us and makes us pure, truly holy, fills our life with the color of love, of joy, of truth. And so it's a very special celebration. And because it's happening right now, this is the time when it truly is Shivratri, the time that God has incarnated and is doing the task of liberating us from that darkness and bringing us to the world of light and the world of liberation. And so how do we experience that today? We can experience the protection of God's love, no matter how much chaos is happening around you. Just stay connected with God, with your heart, with your mind, and you'll feel God's love protecting you. And the chaos will stay outside, it won't come inside. But rather, the experience that you have of God's love will reach out and touch others and help them come back to a state of harmony also. Think about the time when, in sorrow, you remembered God and asked God to liberate you from sorrow. Well, that time is today, it's now. And truly through that connection, we can experience the liberation from all types of grief and sorrow and experience great happiness in our life. And so my hope is that your fasting, your upvas, is not just fasting from food for a few hours, but truly it's the fast in which we observe that which can bring us closer to God, upvas, to come nearer to God. And that means the fast of impure thoughts, impure words, impure activity and behavior, and that you will experience the true Jagran, the time when God comes to awaken us out of the sleep of ignorance,
to take us out of that darkness of ignorance into the light. And so have a very special celebration for Shivratri, but this time with real deep understanding of its significance, so that you can experience the beauty and the truth that God wishes to bestow on you. Enjoy the festival. Om Shanti. पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में दशो दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। Hey Prabhu, I have been thinking for quite some time. Why are you wearing a garland made of skulls around your neck? Whose skulls are they? Devi, this garland belongs to the one who is very close to my heart. Very close? Yes, the one closest to me. Which devotee of yours is very close to your heart that I do not know about? Of course, I can tell you, Devi. Hey Prabhu, you are making me feel anxious. Please tell me. Devi, this garland represents your many births.
My many births? What do you mean by that? Yes, Devi. This curl garland is of the different forms of each of your births, which I have worn as a memorial of you. This shows my love for you. Hey Prabhu, why is it that I am in the cycle of birth and death? I have to do intense tapasya in every birth to attain you. How do I free myself from this cycle? This is a very interesting question, Devi Parvati. Only those who know the story of immortality can free themselves from all worries and truly enjoy life. However, this story is a secret that is not known to anyone other than Tridev. That is Brahma, Vishnu, and I. Please tell me the story too. I want to become immortal and stay with you forever so that you will not have to wear this garland of each face of mine. Devi, this story is not that simple. I will share it with you another time. For that, you will need concentration of both the mind and the body. Nahi, Prabhu. Please tell me now. Otherwise, I will leave Kailash Parvat. Devi, don't be upset. To listen to the story, you will need to follow me. Will you tell me the Amar Katha, Prabhu? How can I say no to you? But we need a place of quiet and calm with no interruption. हम महादेव माँ पार्वती की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम अमरनाथ की गुफा का तुमको सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, पावन वर्णन गाते हैं। हम महादेव माँ पार्वती की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। पार्वती को लेके चल पड़े आगे भोलेनाथ, ढूंढ रहे हैं भोलेनाथ जी कोई उचित स्थान, जहाँ न कोई सूक्ष्म जीव हो ना कोई इंसान। जलचर नभचर थलचर कोई जहाँ न आता हो, जगह हो वो वीरान ना किसी जीव से नाता हो। पार्वती को लेकर के एक गुफा में जाते हैं, चारों दिशा में भोलेनाथ फिर नेत्र घुमाते हैं। हम अमरनाथ की अमर गुफा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। Hey Prabhu, this place is very deserted. Are we going to listen to the story here? Yes, Devi. This is a good place. But I will play my damru first to make sure that no one else is here.
Devi, listen to this story very carefully. This knowledge is about the journey of the soul, through which the soul learns about its eternal, immortal, and imperishable nature. It is a spiritual story of self realization, which makes the soul free from fear. Yes, Prabhu. I will concentrate and listen. Devi, during the story, you must respond so that I know you are listening. As you wish, Prabhu. Devi, please make sure that you don't fall asleep. Ji, Prabhu. I will listen to the story with attention and respond by saying, hmm. अमर कथा का अंत न आए, गए कई दिन बीत, हार गई थी पार्वती जी, निद्रा गई है जीत, बैठे बैठे ऊँघ रही थी, शिला पे लेट गई, पार्वती जी गहरी नींद की गोंद में झूल गई, हुंकारी रुक गई गुफा में, चलती रही कथा, अब आगे की सुनो कहानी, अब होता है क्या, हुंकारी भर दोनों कबूतर एक एक करके, अमर हो चुके थे वो दोनों कथा को सुन करके, Devi? Devi, did you understand? Devi ji, are you sleeping? Sorry, Prabhu. Has the story finished? I didn't realize when I fell asleep. Prabhu, please forgive me. If you were sleeping, who was making those noises when I was narrating the Amar Katha? I don't know. I made sure before entering the cave that we were alone. Is there anyone else here who was listening to the story without my permission? Who is it? Come before me, otherwise I will give you a severe punishment. Calm down, Shankarji. Shankarji, please control your anger. Devi Parvati is telling the truth. Prabhu, please forgive us. We were unaware that you were not supposed to be here. It is in our nature to say, If you kill us, Prabhu, then the story of immortality will be false. Okay, I will give you the blessing that both of you pigeons will be the memorials of the Amarnath Katha. And bear in mind that this Amar Katha is taught by the Supreme Soul himself. The Supreme Soul? But you yourself are the Supreme Shiv Shambhu. No, I am one deity out of the Trimurti. Shiv Shambhu means Swayambhu, self-manifested, which means Lord Shiva himself, who is the Supreme Soul.
I gain power by focusing on Him. So, does the Supreme Soul not have a physical body? No, he does not have a physical body. He is Nirakar, incorporeal. He is beyond the cycle of birth and death. He is beyond happiness and sorrow. At the same time, he is the bestower of happiness. He is the Supreme Soul, which means that he is the highest on high. He is beyond any experience of pleasure and pain, happiness and sorrow. Shiva's praise is Satyam, Shivam, Sundaram. This describes his personality. Oh, really? This is so interesting. Yes, Devi Parvati, even though He is the point of light, His praise is unlimited. He is the ocean of love, peace, happiness, and knowledge. And at the end of the Iron Age, He enters an ordinary body and gives this knowledge to all, through which the soul attains liberation. So, does being immortal mean being free from the cycle of birth and death? Immortal does not mean that the soul will never leave the body. Birth and death is inevitable. However, it is the actions performed by an individual that determines the soul's onward journey. Jaisi karni, vaisi bharni. For example, Sri Krishna and Sri Ram's elevated actions have left a deep imprint in our hearts and changed our lives. This is the true story of immortality. Wow, I'm amazed to hear this. When will the Supreme Soul come to give this knowledge? Devi, that time has arrived, just like it is said in the Bhagavad Gita. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। शक्ति का लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता
कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है, हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर। जोरदार तालियां फिर से एक बार बजाएं इन सभी के लिए। इस आध्यात्मिक राजयोग का यही फायदा होता है कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो कैरेक्टर्स तो थे ही, लेकिन कैरेक्टर्स को तैयार करने वाले एक्टर, डायरेक्टर्स, जो भी प्रोड्यूसर है, मेकअप आर्टिस्ट, साउंड टीम, टेक्निकल टीम, तो सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। सभी के लिए ज़ोरदार तालियां इन एडवांस अभी से ही। थैंक यू सभी को, जिन्होंने भी इतना सुंदर ड्रामा बना के हम सबके पास दिखाया। तो सभी ने अमरनाथ की कथा सुनी? पक्का सुनी? सुनाई दिया था? वो तो म्यूजिक बज रहा था, मैं तो नहीं सुन पाई। तो वो अमरनाथ की कथा क्या थी? जो कथा सुनने के बाद कहते हैं कि अमर हो जाते थे, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि बाद में जो अमरनाथ की कथा थी उसको फिर शंकर जी ने, कहा जाता है कि शिव जी ने ऐसा वरदान किया कि अमरनाथ की कथा सुनने के बाद तो किस तरह से अमर हो जाते हैं उसका रहस्य, क्योंकि कथा तो पूरा सुनने को नहीं मिला ना, तो सुनना चाहेंगे? तो हम सभी वेलकम करते हैं स्टेज पर शांतनु भाई को। प्लीज़ तालियां बजाएं। शांतनु भाई, आप जहां कहीं भी हैं स्टेज पे आ जाएं। शांतनु भाई जो खास अमरनाथ की कथा क्या है उसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए मधुबन से आए हैं, माउंट आबू राजस्थान से, स्पेशली हमारे लिए। थैंक यू शांतनु भाई। शांतनु भाई 2000 से बीकेएस के साथ जुड़े हुए हैं और 2012 से माउंट आबू मधुबन में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा रेडियो मधुबन चैनल है, मीडिया में और काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स में सेवाएं देते हैं और यूके में भी आकर काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत कुछ हमें सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो थैंक यू आज के दिन हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये क्वेश्चन आंसर करेंगे इंदु बहन को। इंदु बहन प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाए। तो ज़ोरदार तालियों से हम इंदु बहन का भी स्वागत करेंगे, जो पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप से जीवन जी रहे हैं और दादी जानकी के अंग संग रहकर इन्होंने ट्रेनिंग ली है, दादी जानकी और जयंती दीदी के साथ। तो ये हमें अमरनाथ की कथा का रहस्य बताएंगे, ठीक है ना? आप में से किसी को कुछ पूछना हो ना तो फिर बाद में पूछ सकते हो आप, तो इंदु बहन उसका जवाब देंगे। तो शांतनु भाई इंदु बहन से हमें बताएंगे कि अमरनाथ की कथा क्या है, क्वेश्चंस आंसर करेंगे। थैंक यू सभी को, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच सुकांति बहन। आप सबको अच्छा लगा? ऐसा लगा थोड़ा और चल सकता था ना, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और लंबा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा ही लगा। आपने फर्स्ट टाइम ये स्टोरी कब सुनी थी? मेरी मम्मी ने बचपन में हम लोगों को सुनाई थी। कुछ समझ में आया था तब?
मेरे को स्टोरी उस समय अधूरी लगी कि स्टोरी क्या है समझ में नहीं आया उस समय। जैसे अभी भी हुआ कि एवरीथिंग वी वर लिसनिंग, सब सुन रहे थे, लेकिन जब वो राइट टाइम आया तब म्यूट में हो गया सब। हाँ, ये अमरनाथ की कथा में ऐसे ही होता है कि कथा एक्चुअल क्या है, शंकर पार्वती को क्या सुना रहे हैं वो किसको नहीं पता है। लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत फायदे हैं अगर हमको वो कथा, क्योंकि वो सिर्फ कथा नहीं है, हमारी लाइफ की स्टोरी है। हर एक आत्मा पार्वती है। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमारी वृत्ति परे है। इस दुनिया से जितना हम परे जाते हैं तो हम वो कथा समझ सकते हैं। तो मतलब वृत्ति जब परे जाए तो वो व्यक्ति पार्वती है। हर एक आत्मा पार्वती है, क्योंकि ये जो कथा है, शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है जब पार्वती शंकर जी से पूछती है कि मैं क्यों जन्म मरण के चक्र में आती हूँ और आप क्यों नहीं आते? ये है शुरुआत, उसकी क्यूरियोसिटी कि ये आप क्या पहना हुआ है। तो फिर उसका जवाब देना पड़ता है ना, क्योंकि भगवान को हम कुछ भी बात होती है ना, हम कहते हैं भगवान जाने, मीन्स हम ये समझते हैं कि भगवान के पास सब जवाब है, सब ज्ञान है, नॉलेज फुल है। तो उसको ठीक ऐसा जवाब देना चाहिए जो हमको जचे, जो हमको समझ में आवे। सो इफ यू हैव टू पिक 3 वर्ड्स, कोई 3 शब्दों में अगर आपको इस कथा को समराइज करना है, व्हाट वुड बी दीज 3 वर्ड्स? सबसे पहले तो आप देखेंगे पार्वती का प्यार है भगवान के लिए। वो चाहती है कि हर जन्म मैं तेरे साथ रहूं, परंतु उसको क्यूरियोसिटी भी है कि ये क्यों पहने हैं आपने स्कल्स वो। तो फिर जानने के बाद संतुष्टता भी होनी चाहिए, जानने के बाद कुछ प्राप्ति भी होनी चाहिए। तो ये 3 शब्द, प्यार, क्यूरियोसिटी और प्राप्ति। सो लव, क्यूरियोसिटी एंड अटेनमेंट्स। हाँ, प्यार, जिज्ञासा और प्राप्ति। हाँ, जब हम प्यार की बात करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार शायद करते हैं, अपने काम से भी प्यार करते हैं, लेकिन भगवान से प्यार करना, व्हाट इज दैट फॉर यू? हाउ डू समबडी स्टार्ट्स? कहाँ से शुरू करें? एक्चुअली इसमें स्टार्टिंग की कोई बात नहीं है। आत्मा का, हम सब आत्मा है, आत्मा का जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में इनबिल्ट, ऑलरेडी है, प्यार है आत्मा के अंदर। आत्मा का प्यार परम आत्मा से है। एक जैसे बॉन्ड कहे, कनेक्शन कहे, संबंध कहे, आत्मा परम पिता है ना, इसलिए आत्मा पहचानती है परमात्मा को। लेकिन हम इतना बॉडी कॉन्शियस है कि हम एक ब्लॉकेज, ये जैसे शरीर हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, हमको परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने नहीं देता है, वो प्राप्ति करने नहीं देता है। तो जब हम अपनी वृत्ति को 2 शब्द में यूज करेंगी इंग्लिश में, इनवर्ड और अपवर्ड। जब हम ये मेहनत है, ये कोई ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये हमको अपने आप को करना पड़ेगा। अंदर जावे, अंदर माना आत्मा को देखे, अंदर लिवर ब्रेन ये सब नहीं, अंदर माना हमारे अंदर एक दुनिया है, उस दुनिया में हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, इच्छाएं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ है हमारे अंदर की दुनिया में। जब तक हमने वो पहचाना नहीं कि अंदर की दुनिया में ट्रेजर्स भी हैं, खजाना है, सिर्फ विकार नहीं है, सिर्फ पाप कर्म नहीं है,
सिर्फ जो पास्ट है वो नहीं है, लेकिन उसको उतारो। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो एक एक लेबल को उतारो और अंदर आत्मा रियल में शुद्ध और शांत है। आत्मा का जो नेचर है, जो उसका निजी स्वरूप है, वो है शुद्ध और शांत। जब तक हमने वो शुद्धि और शांति को एक्सेस नहीं किया है, तब तक हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखो, दो शब्द हैं, गुड और गॉड। गॉड का कनेक्शन अगर करना है तो अपनी अंदर की अच्छाई को पहले टच करो, देखो। क्योंकि देखो, परमात्मा क्या है, जैसे मैंने कहा, पिता है। और देखो, हम भक्ति में क्या करते हैं, मंदिर में क्या करते हैं, मंदिर में जाकर मूर्तियों के सामने जाकर बताते हैं, मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं निर्गुण, मेरे में कोई गुण नहीं है। तो हम अपने आप को नीच बताते हैं और फिर परमात्मा की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, आप ऊंच हो, आप महान हो। तो अभी कोई भी पिता, कोई भी माता अपने बच्चों से ऐसा सुनना चाहेंगी? बच्चा कहे मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, उसको कैसे लगेगा? उसको लगेगा ये मेरा बच्चा है। तो परमात्मा के साथ हम क्यों वो कनेक्शन, वो संबंध, वो प्यार का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको आता ही नहीं, फ्रीक्वेंसी एक नहीं है। अपने आप को नीच समझना, उसको ऊंच समझना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जैसे कि एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है, वो ट्रांसमिशन दे रहा है, लेकिन अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है तो वो भले आप ही रेडियो में काम करते हो तो वो तो आवाज दे रहे हैं, ट्यून करना पड़ेगा, लेकिन सामने वाला ट्यून नहीं कर रहा है तो कुछ प्राप्ति नहीं है। तो परमात्मा के साथ भी जैसे एक ट्यूनिंग करना पड़ता है, अपने अंदर के गुणों को सिर्फ हाँ मेरे में ये गुण है ऐसे नहीं, लेकिन जैसे समझो शांति का गुण है तो वो फील करना पड़ता है, पहले अपने ऊपर काम करना पड़ता है। एक विश्वास चाहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसे नहीं मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, वो हुआ होगा। ऐसे नहीं कि मैं वो डिनाई कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि हमने पाप नहीं किए हैं, किए हैं, लेकिन अभी जब तक हम अपने अंदर की अच्छाई, अपने अंदर जो खजाना है, उसको जब तक हम टच नहीं करते हैं तो हम ऊपर, क्योंकि देखो शब्द क्या यूज किया, उपवास, मीन्स ऊपर वाले के साथ वास करना, उसके साथ रहना। तो ऊपर जाने के लिए सिर्फ ये कहना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उससे हम ऊपर नहीं जा सकते। उससे हम यहाँ पहले मन को शांत करते हैं, क्योंकि मन तो एक घोड़े की तरह है, भागता रहता है। कोई कहते हैं मन मंकी की तरह है, तो मन को शांत करना है। क्योंकि मुझे वो जैसे पार्वती कह रही थी और शंकर जी ने भी कहा, ये जो कथा है ये है आत्मा की जर्नी की। आत्मा जन्म लेती है, मरती है, फिर मनुष्य जन्म लेती है, जानवर नहीं बनती है। ये कथा में ये है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। आप सोचो जानवर का जो पॉपुलेशन है एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, कई एनिमल जैसे कम होते जा रहे हैं। अगर आत्मा जानवर बनती तो हम जानवरों को मारते? अभी आप मच्छर को देख के क्या सोचते हो? मच्छर होगा तो ये नहीं, सच में ऐसे एक बार हुआ था। एक 18 साल की लड़की,
वो अपने घर में मक्खी मार रही थी, मक्खी मारने की कोशिश करी, तो उसका बाप कहता है उसको, नहीं करो, क्या पता आपकी ग्रैंड माँ ना हो। He must be thinking of his mother-in-law नहीं, maybe. तो कई अभी सांप है, उसको क्या करेंगे आप? उसको प्यार करेंगे या मारेंगे? क्योंकि पॉइजनस है। तो एनिमल पॉपुलेशन कम होता जा रहा है और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। माना मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती। इसका मतलब वहाँ वाले इधर नहीं आ रहे, इधर वाले उधर नहीं जा रहे, दे आर इन देयर ओन साइकिल्स। अपना उनका है। हाँ। तो देखो कई डॉग्स हैं, उनको बहुत प्यार से पालते हैं, कई स्ट्रीट पर है, कोई उनको देखता भी नहीं है। तो क्या है ये सफरिंग है, क्योंकि जिसको पाल रहे हैं। एक बार एक बहन के डॉग ने मीन्स ही डाइड, तो बहुत रोई क्योंकि वो अपना बच्चा समझती थी उसको। तो वो हमारी बड़ी दादी के पास गई, तो उसने दादी जी को कहा कि आप मेरे डॉगी के फ्यूनरल में आएंगे। वेरी स्वीट। ये तो मधुबन में ही हुआ है, आपके वहीं हुआ। तो दादी ने उसको कहा, तुमको एक डॉगी से इतना मोह, तुम इतने दिनों से रो रही हो। तो हमारा जानवर से प्यार जुट गया है, क्योंकि हम सोचते हैं जानवर तो जवाब नहीं देते ना, हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करते हैं, चिल्लाते नहीं है, हमारी बात मानते हैं, जो उनको खाने के लिए दो नखरा नहीं करते हैं, मुझे आज चाइनीज चाहिए, ये चाहिए। जानवर ये नहीं करते हैं ना। इट्स लाइक इजी रिलेशनशिप। हाँ, मीन यू आर द मास्टर। तो जानवरों से प्यार हो जास्ती बढ़ गया है और मनुष्य से एक दूसरे से प्यार घट गया है। आप ही जानो। मुझे किसी ने एक बार कहा था, आजकल दुनिया में सबसे मुश्किल है रिलेशनशिप निभाना। तो मैंने देखा लोगों को रिलेशनशिप्स निभाना बहुत मुश्किल लगता है। बना लेते हैं लेकिन निभाना मुश्किल है। हाँ, exactly. नए संबंध जोड़ते जाते हैं, फेसबुक के नंबर्स, व्हाट्सएप के आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, 1000 प्लस होंगे, लेकिन किसी से दिल की बात हम सुना नहीं सकते। आई रिमेम्बर, मतलब मुझे लगता है ये बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं तो खूब अपने कार्ड्स देते हैं, दूसरों के कार्ड्स लेते हैं, बट देन कितनों को हम कांटेक्ट बैक करते हैं, उसको एस्टैब्लिश करते हैं, नरिश करते हैं उस रिलेशनशिप को। प्रोबेबली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। निभाते कैसे हैं? फॉरवर्ड से निभाते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ ये जानना था, जैसे स्टोरीज आर वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कहानी, अगर मैं किसी को कोई चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसको अगर मैं कहानी के द्वारा बताता हूँ तो शायद बात ज़्यादा याद रहती है। आई एम श्योर आज भी जो हमने देखा उससे हमको वो चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। लेकिन इवन जयंती बेन सेड कि इट्स नॉट द स्टोरी दैट पीपल फॉरगेट। हम शिवरात्रि मना रहे हैं, दिस इज़ द टाइम ऑफ शिवरात्रि, विच मीन्स फेस्टिवल जो है उसका एक स्वरूप है, राइट? सिमिलरली द स्टोरी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। तो इसमें भी जो कैरेक्टर्स हैं दे रिप्रेजेंट समथिंग। जैसे आपने बोला पार्वती एक रिप्रेजेंटेशन है सोल्स का। सो व्हाट आर द अदर कैरेक्टर्स दैट यू रिकॉग्नाइज? कौन से हैं वो पात्र? हम सब आत्माएं, जितनी भी कथाएं हैं, समझो जैसे महाभारत में अर्जुन कृष्ण है, जैसे पार्वती और शंकर का देखा, राम सीता का हम सुनते हैं, वो भी बचपन में मैंने सुना था। तो इनके पीछे बहुत रहस्य है जो समय के अनुसार गुम हो गया है। तो जो क्वेश्चन पूछता है, जिसकी स्थिति, जिसकी स्टेज लो हो जाती है, जैसे अर्जुन है, युद्ध के मैदान पर है लेकिन उसको डिप्रेशन हो गया। आजकल के हिसाब से डिप्रेशन ही कहेंगे ना उसको, कि एंजाइटी भी है, एंजाइटी हो गया कि मैं कैसे लड़ूं, हिम्मत हार गया। तो ये मनुष्य का हाल नहीं है।
कि हिम्मत हारे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं मैं लड़ने से मुझे क्या मिलेगा, ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, इनके साथ मैं क्या झगड़ा करूं। तो अर्जुन हम हैं, फिर पार्वती हम हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। और फिर राम सीता में सीता हम हैं, जो शोक वाटिका में बैठ गए हैं, राम से दूर हो गए हैं। तो अभी हम कहाँ बैठे हैं? हर एक घर क्या हो गया है? एक शोक वाटिका नहीं है क्या? तो ये कहानियाँ जो हैं हमारी स्थिति की बताती हैं कि स्थिति लो हो गई है, अभी क्या करें, कहाँ जाए। भगवान को या तो खोज ढूंढते हैं, फिर नहीं मिलता है तो कहते हैं सर्वव्यापी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, मैं ढूंढ रही हूँ कुछ, आप आके मुझे देखो और देख लो मैं ढूंढ रही हूँ कुछ, आप मेरे को पूछो आप क्या ढूंढ रहे हो, तो मैं कहूँ मुझे पता नहीं है, तो आप सोचेंगे इसका स्क्रू ढीला है, हाँ इसका एक यहाँ कुछ तो कमी है। लेकिन ये है हाल, हम जीवन में कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई पूछे क्या ढूंढ रहे हो, पता नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं? शांति, खुशी, शक्ति। क्योंकि शक्ति कौन सी चाहिए? धन की शक्ति तो है हमारे पास, पोजीशन की भी शक्ति है हमारे पास, लेकिन अंदर, आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है बातों को फेस करने की। वो शक्ति हम ढूंढ रहे हैं, थी इसलिए ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं होती तो हम ढूंढते नहीं। तो इनर स्ट्रेंथ हम किस लिए ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमको अपनी लाइफ में कुछ न कुछ परिवर्तन लाना है। इस स्टेज तक पहुंच के हैं सभी कि आई वॉन्ट टू चेंज। ये अंदर आता है, अंदर से ये आवाज़ निकलता है, नॉट आई वॉन्ट टू चेंज, आई नीड टू चेंज। कुछ न कुछ अपने में परिवर्तन लाना है, नहीं तो सोसाइटी, लोग ऐसे हैं कि अगर हम उनका सुनते रहेंगे, वो जैसे कहे करते रहेंगे, तो क्या होगा? हम दुखों में बह जाएंगे, हम दुखों में लिप्त हो जाते हैं, इंग्रोस्ड। हम अपने आप को उस दुख से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, चिंता से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। चिंता हमको कंट्रोल कर रही है, एंग्जाइटी, जैसे शंकर जी ने बोला, ये कथा सुनने से डर खत्म हो जाएगा। कौन सी कथा? अमरनाथ की। कि आत्मा, देखो गीता में भी लिखा है, आत्मा अमर अजर अविनाशी है। अमर माना कभी मरती नहीं है। अजर का मतलब क्या है? बीमार नहीं पड़ती, बीमार नहीं पड़ती है, माना आत्मा की कोई उम्र नहीं है। जैसे शरीर की उम्र है, किसी ने मुझे कहा इस साल में 60 होंगी, आत्मा नहीं है, ऐसे नहीं है आत्मा 60 की है, 70, अमर है, माना उसका कोई अंत नहीं है, आयु नहीं है। और फिर अविनाशी, विनाश नहीं हो सकता है। गीता में ये भी है, न ढलती है, न गलती है, न जलती है, उसको कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, जो भी हम कर्म इन कर्म इंद्रियों से करते हैं, हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। देखो जितने भी सामने बैठे हैं, मुझे लगता है आपने वो टाइम देखा है कि जब हम घर में खुद कुछ रिकॉर्ड करते थे। अभी रेडियोस में ऐसे नहीं है,
पहले कैसे रिकॉर्ड करते आपको पता है? हाँ? शायद याद है। नहीं पता है आपको? नहीं। टेप रिकॉर्डर होता था, 2 बटन एक साथ दबाने होते थे। हाँ, द रेड एंड द ब्लैक रेड कॉर्नर एंड मोस्ट। ब्लैक। और जो रिकॉर्ड का बटन था ना, अकेले दबाया ही नहीं जाता था, दबता ही नहीं था, दोनों साथ में दबाने पड़ते, तब रिकॉर्डिंग होती थी। तो हम आत्मा ये हो रहा है, हम अपना पार्ट, अपना रोल, अपनी एक्टिविटी प्ले हो रहा है, और साथ साथ आत्मा में रिकॉर्डिंग हो रहा है। शरीर के द्वारा प्ले और आत्मा में रिकॉर्डिंग। इसलिए 10 साल पहले की बातें भी याद है, फलाने ने मुझे ऐसे कहा था, उसका टोन ऐसा था, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हुआ है। अभी कईयों की लाइफ में ऐसे रिकॉर्डिंग हुए हैं जो वो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। कुछ दुख दर्द के, मेरे माँ ने ऐसे किया था, मेरे बाप ने मुझे पूछा नहीं, है वो सब। तो अभी रिकॉर्डिंग को कैसे चेंज करें? तो वही जो सिस्टम है प्ले रिकॉर्ड का, अगर हमको कोई रिकॉर्डिंग डिलीट करना था या चेंज करना था तो उसके ऊपर रिकॉर्ड करना पड़ता था। यू हैड टू रिकॉर्ड ऑन टॉप, ओवर इट। तो पास्ट को भूलने के लिए हमको अभी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनानी है, अच्छी अच्छी बातें याद करनी है, परमात्मा से कनेक्शन या संबंध जोड़ के उसका प्यार का अनुभव करना है। वो उसका प्यार ऐसा है जो हमारा जो पास्ट है डिलीट कर सकता है, क्योंकि कई बातें पास्ट की ऐसी हैं जैसे बहुत भारी पड़ती है, हमको आगे बढ़ने नहीं देती है लाइफ में। I mean, past is one thing, दीदी, but one more thing, जैसे अभी प्रेजेंट में भी आप देखिए, टर्की एंड सीरिया went through such a big turmoil, मतलब जो एक बहुत अर्थक्वेक हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ। पास्ट बहुत डिस्टेंस नहीं, जस्ट 1-2 हफ्ते पहले की बात है। वहाँ के लोगों के लिए भी भूलना मुश्किल है, हमारे लिए भी भूलना मुश्किल है। सो डू यू थिंक कि द अमर कथा और द नॉलेज, जैसे शंकर ने बोला कि भाई इस कहानी को सुनने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, सो डू यू थिंक दैट लव हैज़ दैट पावर टू हील द सोल फ्रॉम दीज मेमोरीज, जो कि अभी रिसेंटली रिकॉर्ड हुआ है? हाँ, अभी जो हुआ है, समझो टर्की की बात है, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और उसमें एक तो है जिन्होंने शरीर छोड़ा। अभी जिन्होंने शरीर छोड़ा उसको क्या चाहिए? देखो, कोई भी शरीर छोड़ता है, हम क्या देते हैं उनको? शांति का दान देते हैं ना, शांति प्रार्थना करते हैं, शोक सभा रखते हैं, ये सब। तो उनको शांति चाहिए जो गए। अभी जो रह गए उनको क्या चाहिए? उनको भी शांति चाहिए। और फिर हम सभी जो टीवी पर देखते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए क्या? हमको भी तो शांति चाहिए। तो ये 3 ग्रुप्स हैं हर घटना में, हर सिचुएशन में। ये 3 ग्रुप्स रहते हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ा, जो रह गए परिवार, और जो सुनते हैं, देखते हैं। तो शांति मिलेंगी कहाँ से? अलजेब्रा में, जब अलजेब्रा स्कूल में करते हैं ना, तो वो पहले एक असम्पशन लेते हैं। असम्पशन क्या है? A = C, उससे स्टार्टिंग करते हैं। फिर सारा उसका मैथ्स करते हैं, सारा उसका वर्कआउट करते हैं, और रिजल्ट होता है A = C। अभी ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? क्योंकि हमको भी असम्पशन से स्टार्ट करना है। क्या असम्पशन है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इससे शुरुआत करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो भी एक टेक्निक है। मेडिटेशन के अंदर जो टेक्निक है, जो विधि है, उसमें कई लोग मार इसलिए खाते हैं, फिर कहते हैं हमारे से होता नहीं है, क्योंकि
जो सोचने का तरीका है बहुत फास्ट है, बहुत स्पीड है। मैं शांत स्वरूप नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप, ऐसे नहीं है। अगर मुझे मेडिटेशन में सफलता पानी है तो सबसे पहले मैं आत्मा मालिक, मैं इस शरीर की मालिक हूँ ना, तो मैं आत्मा मालिक माना ड्राइवर, सबसे पहले मेरे हाथ में है अपने संकल्पों को स्लो करो। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। स्लो करो, सॉफ्ट करो, तब जाके अनुभव हो सकता है। तो भले कैसे भी घटना घटती है, वो तो हम कहेंगे टर्की में हुआ, घरों में भी तो कुछ न कुछ अर्थक्वेक्स चलते हैं। तो ये एक कला कहो, मेडिटेशन एक कला है। वो सीखने से हमारी लाइफ में जो हम प्रोग्रेस चाहते हैं, अभी मुझे कैसे पता पड़े मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ? जितना हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है इन बातों में। अभी देखो पार्वती तो सो गई, उसको बोला था इस कथा के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, और उसने ही बोला था मुझे सुनना है। हाँ, तो वो सो गई। क्यों? कथा कोई इतनी लंबी भी नहीं थी। लेकिन पहले, अभी मैं नहीं कहेंगी, पहले हम भी जब छोटे थे ना, जब माँ बाप भगवान की बातें करते थे ना, हम बोर हो जाते थे। तो उबासी लेना शुरू करेंगे ये सब। लेकिन अगर 3 घंटे की फिल्म देखनी है तो उसमें नहीं सोता है कोई। लेकिन कथा में मंदिर में जाते हैं, सो जाते हैं, मीन्स ऐसे हो जाते हैं। तो आत्मा को अपनी उन्नति कहाँ तक चाहती है कि मुझे इसमें कितनी प्राप्ति है, मुझे मेरे में परिवर्तन आएगा। हम सोचते हैं परिवर्तन बहुत बड़ी बातों की होती है। नहीं, घर में आप खुद को जब भी आँख खुले, मैं ये नहीं कहती हूँ 4 बजे उठो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में सुबह जल्दी उठते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जब भी आँख खुले वही अमृत वेला है। सबसे पहले खुद को टाइम दो, सीधा काम काज में नहीं लग जाओ कि चाय बनाना, ये करना, वो करना, नहीं। अपने आप को 3 सेंटेंस, एक तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दूसरा मैं लाइट स्वरूप हूँ, और तीसरा मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझे याद है इंडियन एक औरत लेडी थी, तो उसने कहा कि इंडियन लेडीज का कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स उनको दबाया गया है। मैंने कहा उनको सिर्फ दबाया नहीं गया है, उनका खुद का भी स्वमान नहीं है ना। दोनों बातें हैं। 100 साल पहले आप कहेंगे उनको दबाया गया है, लेकिन खुद का स्वमान भी तो चाहिए ना। तो स्वमान माना स्व को मान देना, ऐसे नहीं कि और मुझे मान दो, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं देंगे आपको और कोई नहीं देगा। तो ये 3 बातें, अगर और कुछ नहीं लेके जाओ, ये 3 सेंटेंस लेके जाओ, ये मेडिटेशन है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। हम शक्तियों की पूजा करते हैं, जैसे देखो शिवरात्रि, दूसरा कौन सा है? नवरात्रि। तो अपना स्वमान कि मुझे अपने लिए क्या करना है। हमारी दादी के 3 फेमस सेंटेंस थे, कहती थी पहले अपने आप को पूछो मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, और अभी मुझे क्या करना है। तो ये तो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा फुर्सत नहीं चाहिए, बहुत ऐसे नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं,
भले अनपढ़ हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चन तो हम अपने को पूछ सकते हैं ना। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ? क्योंकि किसकी हूँ माना हम कहाँ बिलोंग करते हैं। कईयों को बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत है कि मैं किसकी हूँ, मेरा कौन है। अभी लोनलीनेस फील करते हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं। तो वो डाउन कर देता है, मेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सेंस ऑफ एसोसिएशन नहीं है। हाँ, अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन में भी बहुत दुख होता है। और फिर मुझे क्या करना है? अगर ये भी 3 बातें, मैं 3 क्यों बता रही हूँ? 3 से ज़्यादा हम याद नहीं कर सकते। हमारी कैपेसिटी उससे ज़्यादा नहीं अब्सॉर्ब कर सकती। तो मेडिटेशन जो है, अभी आप देखेंगे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगम है। शिव के वो मूर्तियाँ हैं, जो भी है पत्थर की मूर्तियाँ हैं, लेकिन उसका हम अभिषेक करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, क्या क्या उसके ऊपर रखते हैं, बिली पत्र, ये सब। इससे क्या होता है? पत्थर के ऊपर दूध चढ़ाना, उससे क्या होगा? मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं करो, लेकिन एक्चुअली जब भी हम भगवान को याद करते, कोई भी धर्म, आंखें किस तरफ जाती है? ऊपर। तो सिर्फ आंखें ऊपर नहीं जानी चाहिए, हमारे थॉट्स भी ऊपर जाने चाहिए। कहाँ तक ऊपर? सूर्य चांद से भी परे जाओ, आसमान से भी परे जाओ, आउटर स्पेस से भी परे जाओ, तो एक लाइट की दुनिया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं निर्वाणा, परम धाम, आत्मा का घर, जहाँ ऊपर वास करते हैं परमात्मा। तो वो हमारा पिता है, तो उसके साथ ही वास करेंगे ना। नेचुरली बच्चे किसके साथ रहेंगे? माता पिता के साथ रहेंगे। तो जब तक वहाँ बुद्धि नहीं लेकर गए हैं, तब तक परमात्मा का प्यार का अनुभव नहीं होगा। तब तक ये जो दुख दर्द की आप बातें करते हो ना, पास्ट का, टर्की का बोल रहे हो, जब तक वो अनुभव नहीं है, तब तक हम कुछ भी दुख दर्द को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कैसे हैं? जैसे देखो, लेज़र सर्जरी होती है, तो लेज़र सर्जरी में 20 सेकंड लगते हैं। आंखों की लेज़र सर्जरी बहुत कम लोगों को 20 सेकंड में हो जाता है। उसको ऑपरेशन भी नहीं कहा जाता है, इट्स कॉल्ड अ प्रोसीजर। तो करेक्ट हो जाते हैं, आंखें करेक्शन कर देते हैं। तो परमात्मा की जो लाइट है ना, तो उससे जो रेज, उससे जो किरणें निकलती हैं, क्योंकि लाइट से किरणें ही निकलती है, सूर्य से किरणें ही निकलती है, तो वो किरणें आत्मा को टच करती हैं, और जो भी उसके पास्ट पाप कर्म, विकर्म, दुख दर्द, उसको भस्म कर सकती है। लेज़र बहुत जल्दी भस्म कर सकती है। तो वो वहाँ तक पहुँचना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन मैं चैतन्य शक्ति हूँ। फिर संकल्पों को इतना ऊपर ले जाना, आसमान से भी परे, उस लाइट की दुनिया में वहाँ तक ले जाना, ये है मेहनत। और इसमें अगर कंसंट्रेशन हो गया, मैं आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के सामने, ऐसे नहीं हम एक हो जाते, वी आर सेपरेट, पर मैं उससे शक्ति ले सकती हूँ। जैसे देखो, अंग्रेज लोगों को किस चीज़ का शौक है? सन बेथिंग। हॉलिडे पर जाते हैं और धूप में बैठते हैं, विटामिन डी मिलती है। तो परमात्मा भी जैसे आत्मा के लिए विटामिन डी है, ताकत है। मुझे याद है, हमारी दादी 104 साल की उम्र तक थी, उसको डॉक्टर हर 6 महीने आकर इंजेक्शन देता था। कौन सा इंजेक्शन? दादी पूछती थी क्या इंजेक्शन? कहता ये ताकत का इंजेक्शन है।
बाद में पूछा मैंने कौन सा इंजेक्शन है, ताकत का इंजेक्शन, ताकत, तो कहा विटामिन डी है। तो ताकत मिलती है ना विटामिन डी से, और नेचुरल विटामिन डी माना सूर्य से। तो परमात्मा हम आत्माओं के लिए सूर्य समान है, वार्मथ मिलती है, लाइट मिलती है, विटामिन डी भी तो मिलती है। तो परमात्मा से शांति, शक्ति, पवित्रता भी मिलती है, क्योंकि जो आत्मा के अंदर जैसे गंदगी है, अशुद्धता है, इम्प्योरिटी है, उसको भी तो खत्म करना है। तब जाके सिर्फ ये एक काम नहीं है, लेकिन इसमें आत्मा को बहुत मजा आता है। क्योंकि क्या है कि अगर सुख पाना चाहते हैं तो हम अपने कर्म इंद्रियों को यूज करते हैं। खाने के लिए जीभ यूज होता है, म्यूजिक सुनने के लिए जैसे सबको मजा आया था डांस में, आंखें यूज हुई, कान यूज हुए, तो कर्म इंद्रियां यूज हो रही हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें कर्म इंद्रियां नहीं चाहिए, आंखें नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, मुख नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थॉट्स स्लो करो, थॉट्स को शुद्ध करो, क्वालिटी थॉट्स की बढ़ाओ, और फिर देखो आपका परमात्मा के साथ, और देखो नाम परमात्मा शिव, शिव का मतलब कल्याणकारी। तो शिव को याद करने से हमारा कल्याण होता है। लेकिन हम भारतवासी सभ्यता वाले हैं, कभी अपने बाप को नाम से नहीं बुलाएंगे। नहीं कि रमेश ऐसे घर से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ हम कहते हैं शिव बाबा। बाबा शब्द में प्यार आता है, बाबा शब्द में रिस्पेक्ट आता है, फीलिंग आती है। तो बाबा को मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ, मुझे बाबा से मिलना है, मुझे बाबा के साथ समय बिताना है, बाबा से शक्ति लेनी है, बाबा 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 करते रहो। तो आपको लगेगा, मुझे किसी ने पूछा, सॉरी आपको मैं, कि भरोसा क्या है, भरोसा का मतलब क्या? क्योंकि कहती मेरे को भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है। मैंने कहा सच में भरोसा है? तो अगर भरोसा है, क्या भरोसा है कि वो मुझे कभी हारने नहीं देगा। परमात्मा वो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है, एनर्जी है, जो मुझे कभी दुखी नहीं होने देगा, हारने नहीं देगा, कैसा भी सिचुएशन हो। जब आप कहते हैं हारने नहीं देगा या दुखी नहीं होने देगा, क्या इसका मतलब ये है कि एग्जाम्स आएंगे एंड वो बचाएगा, या व्हाट इज दिस प्रोसेस? प्रोसेस क्या है कि समझो, अभी देखो दुनिया में बहुत लोग दुख देने के लिए रेडी है, दुख बिंदास देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम दुख दे रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है कि हम दुख दे रहे हैं। और अगर हमने दुख ले लिया तो उसको कहेंगे मैं हार गई। हारने का मतलब मैंने उनकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ले ली, मैं दुखी हो गई, मैं उनके लेवल पर आ गई। उसने दुख दिया तो मैंने भी दुख दिया, उसने दिया तो मुझे देना चाहिए ना वापस। नहीं, तो हम हारेंगे नहीं, माना हम दुख लेंगे नहीं। जैसे हम अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन, जो 3 संकल्प मैंने बताए ना, तो जैसे वो एक लाइट के ऑर्ब में हम अपने आप को बिठा देते हैं कि मुझे किसका दुख नहीं लेना, फालतू क्यों लो दुख, फिर मुझे वो दुख संभालना है, याद करना है, उसको मैं कब वापस दुख दूँ, ये सब इट्स टाइम वेस्टिंग, इट्स एनर्जी वेस्टिंग। इसमें लाइफ खराब हो जाती है, लाइफ खत्म भी हो जाती है। तो अपने ऊपर एक लाइट का प्रोटेक्शन करो, इनविजिबल लेकिन पावरफुल भी होवे। आई एम प्रोटेक्टेड। परमात्मा की प्रोटेक्शन का, जैसे जयंती मैंने बताया ना, उसका प्यार हमको प्रोटेक्ट करता है, गन्स और गुंडों से नहीं। वो तो हाँ करेगा,
गन्स और गुंडों से भी, अर्थक्वेक से, लेकिन कोई कुछ कमेंट करता है, टोंट करता है, हेलो नहीं करता है, तो बस पूरा दिन उसका दुख ही याद रहता है. तो can you take us on a journey where we can start creating this aura around us? मतलब आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे कि मुझे बाबा के साथ टाइम बिताना है या मुझे परमात्मा के साथ समय बिताने का मुझे चाव होना चाहिए, आई कुड सी वो बोलते हुए भी प्रोबेबली यू आर डूइंग इट. सो इफ यू कैन टेक अस ऑन दैट जर्नी. सबसे पहले शरीर को रिलैक्स करो. मीन्स क्या है, हमारे शरीर में कितना टेंशन भरा हुआ है हम खुद भी नहीं जानते हैं. नॉर्मल हो गया ना टेंशन. आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि देखो जब अर्थक्वेक हुआ तो किसी ने आंखें बंद की थी उस समय? नहीं ना. आंखें बंद करने की मार्जिन नहीं होंगी. जब आपको कोई टोंट मार रहा है तो उस समय आंखें नहीं बंद करते हैं. तो जैसे हम रियल लाइफ में रहते हैं ऐसे हमको अभी मेडिटेशन में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो फिर ट्रांसफ़र करना है सिचुएशंस में. व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग बैठ के अभी, वो फिर ट्रांसफ़र करना है घर में, घर में, काम पर. ये सब शरीर को एकदम रिलैक्स करो. और अपना थॉट्स, मेरे थॉट्स यहाँ हैं, थॉट्स यहाँ नहीं है. हमारा हार्ट है यहाँ, हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन थॉट्स यहाँ नहीं है. थॉट्स यहाँ है और उसको स्लो करो. स्लो करो. कैसे? मैं आत्मा, ड्राइवर, इस शरीर की मालिक, मैं शुद्ध और शांत हूँ. शांति मेरा धर्म है. शांति मेरा नेचर है. मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ. छोटी सी बिंदु, और उस छोटी सी बिंदी में कितने खजाने भरे हुए हैं. ज्ञान एक खजाना है. पवित्रता, सुख, प्यार, शांति, ये खजाने मेरे में है. मुझे बाहर नहीं ढूंढना है कुछ. जो मुझे चाहिए मेरे अंदर है. मैं इन खजानों को लेकर एक चैतन्य शक्ति अभी एक यात्रा पर जा रही हूँ. इस हॉल से ऊपर चांद, सितारे, सूर्य से भी ऊपर जाओ. आकाश से भी ऊपर जाओ. उससे भी ऊपर जाओ. और मैं आत्मा एक लाइट की दुनिया में, शांति की दुनिया में प्रवेश करती हूँ. और इस लाइट की दुनिया में परमात्मा की लाइट मुझे वेलकम करती है. मुझे बुला रही है. शिव बाबा, लाल, मुझे अपने लाइट से
वेलकम कह रहे हैं, आओ आओ। मैं बाबा के सामने एक स्पंज की तरह उसकी किरणें अपने में ले रही हूँ। प्यार की किरणें। यही तो मेरा पिता है, यही तो मेरा माता है, यही तो मेरा सच्चा गुरु है। मुझे जो चाहिए इस परम धाम में परम पिता से मिल रहा है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा मेरे बाबा के पास शांति से अपने आप को खुश नसीब महसूस करती हूँ कि ये तो मैं कभी भी आ सकती हूँ। जितना समय बाबा के पास बैठना चाहती हूँ, कोई रोक टोक नहीं। यही तो मेरा घर है, यही तो मेरा बाबा है। और फिर धीरे धीरे संकल्पों के साथ मैं नीचे वापस इस दुनिया में आती हूँ, इस हॉल में आती हूँ। ओम शांति। I mean, it's really simple but effective. I think we are running late with time. I think Sukanti Ben is here. वो पीछे करिए। But with the last note, I think जो तीन चीज़ें तीन आपने बताया, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक लाइट स्वरूप आत्मा हूँ, and the third one? चैतन्य शक्ति। Very good. So this is the aura, which is a gift from the house to you. Carry it with yourself and share it with your friends. Thank you so much. थैंक यू शांतनु भाई और थैंक यू इंदु बहन। बहुत सुंदर रीति से अमरनाथ की कथा पार्वती का तो सुनाया ही, परंतु साथ साथ अनुभव भी बहुत अच्छा कराया। थैंक यू आप दोनों को।